Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I am going to discuss one descriptive answer with you of ESI. The topic in the question here is urbanization. So let's read the question and see what is this asking. So in the wake of Smart Cities mission nearing completion and recent launch of Urban Infrastructure Fund, critically analyze the role of urbanization in the nation's development, further highlighting the challenges of equitable access to infra and services in rapidly urbanizing regions. So yes, this is our question. Now let's analyze the question and what it is asking. First of all, the question is starting with two government schemes, that is Smart Cities Mission and Urban Infrastructure Development Fund. Okay, so here we can get the gist that in the intro we have to address these two schemes. We have to write something about these two schemes or their success or the challenges that it faced in very gist manner. Now, the main body part consists of we have to answer two things. First, role of urbanization in nation's development, and the second thing is challenges of equitable access. So mainly we can understand we have to address role of urbanization and challenges that it creates. Now here this is a very important, we can say, quote or a line that we can use in our answers, that urbanization is a double-edged sword. Okay, so now moving on to the intro, body and conclusion part. I have always told you that I try to write answer in this format, that we have to write well intro, then we have to write body. In also body we have to write pointers. I really think that pointers work more better than writing in paragraph. So in body, whenever you have to answer anything, just write in pointers. Okay, have a brief pointers and then write about it. Don't write in just paragraph only. It will not create a good impression of your answer. Okay, so now intro, we got the gist that we have to answer these two schemes of the government, that is Smart Cities Mission and Urban Infrastructure Development Fund. Many a times what happens that we read schemes and then we think कि स्कीम से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स मतलब फेज़ वन में या फेज़ टू में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा है, बट हियर हाउ वी कैन गेट द हेल्प. अगर किसी ने स्कीम्स वाले सेक्शन को लेकर ये दोनों स्मार्ट सिटीज़ मिशन या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पढ़ा होगा, सो दे कैन राइट अबाउट इट अच्छे से. अगर देखो किसी ने नहीं भी पढ़ा है तब भी मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा इन स्कीम्स का, सो यू कैन राइट. बट अगर आपने पढ़ा है तो आप उसका टेन्योर लिख सकते हैं, आप देन उनकी मिनिस्ट्रीज लिख सकते हैं, आप लॉन्च डेट लिख सकते हैं, एंड द डाटा पॉइंट्स, द फैक्ट्स विल गिव अ मोर वेटेज टू योर क्वेश्चन, दैट व्हाट आई थिंक. तो इसलिए स्कीम्स पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितनी ज़्यादा आप स्कीम्स कवर कर सकें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में तो मान लो नहीं आएगा, बट डिस्क्रिप्टिव में दे कैन आस्क एनी स्कीम रिलेटेड टू द सिलेबस. सो इंट्रो में आई थिंक कि हमें यही आंसर करना चाहिए, मतलब स्कीम्स के बारे में लिखो. देन थोड़ा सा हम अर्बनाइजेशन को भी डाल सकते हैं कि मतलब ये स्कीम्स आई क्यों, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है कंट्री में, और इसका मतलब ज़रूरी ये है कि सरकार गवर्नमेंट उस चीज़ को एड्रेस करे और उसको सस्टेनेबल मैनर में करे. Also, if someone tries to write the definition of urbanization, so I think that is not a good introduction, because urbanization is a term something that is very basic. So you don't need to define it. You are not writing that basic answer for exam. You have to write a standard answer and advanced answer. So I think writing about definition of urbanization is just a wastage of word limit. So instead of that, write a code related to it, write challenges related to it, something like that. Okay, so yes, now moving to the body part. First body part में हमें आंसर करना है रोल ऑफ अर्बनाइजेशन. नाउ इफ वी सी अबाउट अर्बनाइजेशन, कौन कौन लोग इससे अफेक्ट होते हैं. सबसे पहले तो लोग, देन नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट होती हैं, सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट होता है. इस तरह से कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप ये सोच के अपने बॉडी पार्ट्स बना सकते हैं. यहाँ पर देखो मैंने ये आंसर किया है. अगर अर्बनाइजेशन सस्टेनेबल मैनर में होता है तो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा,
उस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। देन बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, जो वहाँ कर लोग रह रहे हैं, जो पहले से रह रहे हैं, जो आए भी हैं मतलब माइग्रेट करके, वहाँ पर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड उनको मिल सकता है बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एक सस्टेनेबल सिटी होने की वजह से। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट होगा, बिकॉज देखो social development is very much, I think, and it is fact also कि is related to the standard of living. If you are living in a good society where people are open minded, so वहाँ पर बहुत सारे stereotypes अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं as compared to the rural areas of the city. So that's why social development is also an benefit of urbanization, we can say. नाउ वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस, अर्बनाइजेशन का मतलब ही यही है कि हमें सस्टेनेबल वेज में सिटीज़ को डेवलप करना है। और सस्टेनेबल वेज में वेस्ट मैनेजमेंट तो आ ही जाएगा, इन्वायरमेंट पर प्रोटेक्शन आ जाएगा, क्लीनलीनेस आ ही जाएगी। सो दैट्स वाई ये एक उसका बेनिफिट और हो गया। देन यहाँ पर हमने देखो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी डाल दिया। एजुकेशन सोशल डेवलपमेंट के साथ ही हम सारा ये मैंने मतलब एकदम बेसिक बेसिक मुझे दिमाग में सोचवा आता गया, मैं लिखती गई। इसको हम कंप्राइज कर सकते हैं कि हम 4 पॉइंट में बना ले सब इंक्लूड करके। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी बढ़ेगा। देन ऑल्सो इंक्रीज बेस ऑफ टैक्स पेयर्स, व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, इनकम ऑफ पीपल विल इंक्रीज, टैक्स पेयर्स भी बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी तो। सो यस, दीज आर समथिंग। देखो बहुत ही बेसिक पर आपको जाके सोचना है। मैं अपने में क्या ये लगाती हूँ, सबसे पहले कोई भी टॉपिक मिले, कोई भी उसके चैलेंजेस मिले, उसके बेनिफिट्स मिले, कुछ भी मिले, जस्ट थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स, हु ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दिस। हमने गवर्नमेंट को हमने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेक होल्डर रखा, हमें टैक्स पेयर्स मिल गए। हमने लोगों को स्टेक होल्डर रखा, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, सोशल डेवलपमेंट मिल गई। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को रखा, तो हमें मिल गया कि वेस्ट मैनेजमेंट होगा, क्लीनलीनेस होगा। तो ये सब चीज़ हो गया। अब देखो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बट अगर हमें अभी यहाँ पर उसके बेनिफिट्स को आंसर करना है तो हम उस वे में ही जाके सोचेंगे। नाउ इन्हीं सारे स्टेक होल्डर्स को यूज़ करके हम चैलेंजेस भी बता सकते हैं। चैलेंजेस में क्या जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज पर। एंड अर्बन स्प्रॉल क्रिएट हो जाता है। अर्बन स्प्रॉल्स क्या होते हैं कि मतलब जो सिटी के अराउंड छोटे छोटे एरिया में लोग रहने लगते हैं, दैट इज़ अर्बन स्प्रॉल्स। उनसे मतलब वो बहुत स्लम्स, हम कह सकते हैं स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं सिटी के अराउंड। तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर वो रूरल एरिया से भी ख़राब सिचुएशन आ जाती है। वो जितनी छोटी छोटी एरिया में इतने ढेर सारे लोग रह रहे हैं, तो दैट इज़ बहुत ख़राब सिचुएशन। इससे अच्छा तुम भाई गाँव में ही रह लो, बट अर्बन स्प्रॉल्स आर वेरी बैड। एंड अर्बन स्प्रॉल्स होते भी किस लिए हैं, बिकॉज अर्बनाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो लोग रहना तो सिटी की प्रॉक्सिमिटी में ही चाहते हैं, बट उनको वहाँ पर एरिया नहीं मिल रही है अफोर्डेबल पे, तो फिर वहाँ साइड साइड में वो क्रिएट करने लगते हैं अपने छोटे छोटे घर। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे रिसोर्सेज पर एक्सप्लॉटेशन का है। रिसोर्सेज क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती, तो इससे काफ़ी मतलब इससे बीमारियाँ होने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। देन लाइक वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज होती है, एंड ऑल्सो देर इज़ अ सिक्योरिटी इशूज ऑल्सो when density of population increases. Then high inflation in urban areas, because population वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पर डिमांड अब बढ़ेगी बहुत तेज़ी से, सप्लाई उतनी ही है, डिमांड अब ज़्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। तो मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ये सब चीज़ टाल दूँगी जहाँ भी मुझे मिलेगा। नौ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक का इशू आ जाएगा। एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने लगेगी बिकॉज ऑफ अर्बन स्पॉल्स एंड एवरीथिंग। सो दीज आर समथिंग दैट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन। नाउ यहाँ पर देखो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, इन द वेक ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन नियरिंग कंप्लीशन। देखो स्मार्ट सिटीज़ मिशन का कंप्लीशन होने वाला है, एंड रिसेंट लॉज ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये दोनों स्कीम्स को बताया गया था। अब इसमें मैंने क्रिटिकली एनालाइज करना था, तो चैलेंजेस तो बताने ही थे। तो ये तुमने हो गया। अब तुम यहाँ पे तो ख़त्म करोगे नहीं, यू आर गोइंग टू ऐड अ वे फॉरवर्ड, तो मेजर्स डाल दो। सबसे अच्छा कंक्लूजन होता है मेरे हिसाब से, मेजर्स डाल दो, वे फॉरवर्ड डाल दो, पॉजिटिव चीज़ें। ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग नोट, ऑन अ अपॉर्चुनिस्टिक लुक। सो मेजर्स यही होता है कि टारगेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए, देन करप्शन को ध्यान में रखना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग अर्बन प्लानिंग जिस भी तरह से हो रही है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, बिकॉज जैसे कई बार होता है कि ब्रिजेस बने, देन बहुत बारिश हुई, टूट गई, रोड्स टूट गई,
फिर से वही सब दिक्कत आने लगती है। सो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए एंड सोशल इंक्लूजन भी बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, सो दे आर सेटल्ड प्रॉपरली। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन इज़ वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. So yes, this was about today and I hope you guys liked it. मुझे भी थोड़ा रिवीजन हो गया ये क्वेश्चंस पढ़ के. So yes, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.